Hello everyone, today we are going to start our new topic, that is laws of exponent, and we will solve the given expression by using these laws of exponents. You can see that in the expression these all are the exponential expression and the denominator there is the radical expression. So we will solve this. First we'll have to make the factors of all these 243, 32 and 196. So first, this is the part of the question. This is not in the working area. 243, you can do with the table of 3 8 times 24, 3 1 times, 3 2 times 6 and 3 7 times. Then this is 3 9 times 27, 3 3 times 9. It means how many times 3 is there? 4 in 1, 5 times. Then 32 is here. You will make the factors of 32. 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times and 2 2 times. It is 5 times. And then I will make the factors of 196. 196, this is divisible first by 2. 9 times 18, 1 carry, 2 8 times 16, then again by 2, 4 times 8, 2 9 times 18, then 7 times 49 here. Okay guys, you can see that I have made the factors of all. ठीक है, मैंने इन सब के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, फैक्टर्स बना लिए. फैक्टर्स बनाने के बाद मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी. हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर? दैट इज 5 टाइम्स. And its exponent is minus 2 by 3. Then 32, how many times 2? 1, 2, 3, 4, 5 times. 2 is 5 times. पावर, जो टाइम्स होता है वो आप उसको आप पावर में लिखते हैं, minus 1 by 5. In the denominator you can see 196, that is 2 square and 7 square. Mean 2 भी 2 times है and 7 भी 2 times है. 2 is 2 times and 7 is 2 times. Its exponent is minus 1 and this radical we will change. This is the square root, so its power will be 1 by 2. ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन के गेट स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1 by 2. ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यू कैन सी दिस इज 5 multiply by 2. Minus is here, so 3 raised to power minus 5 2 times 10 by 3. Then this 5 is cancelled by 5. You can see this is 2 raised to power minus 1. In the denominator you can see, first of all it has two powers. एक power हमारे पास ये according to the laws of exponent, जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और बाहर दो पावर हो तो हम उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मैं 2 स्क्वायर को ऐसे ही लिखूंगी, 7 स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखूंगी एंड minus 1 multiply by 1 by 2, it will give us minus 1 by 2. In the next step you can see that I will break this one 10 by 3. I can write this as 9 by 3 and 1 by 3. Okay, 9 by 3 and 1 by 3. Okay, so I'm going to break this 3 raised to power minus 9 by 3 and that is minus 1 by 3, because 10 by 3 9 and 1 that is 10 by 3. मैंने इसको ब्रेक कर लिया और इसके साथ है 2 raised to power minus 1. दिस इज डिवाइडेड बाय ये minus 1 by 2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. 2 multiply minus 1 by 2 and 7 square multiply minus 1 by 2. In the next step we will see that this will be cancelled. 3 how many times? 3 times. So here the power of 3 is minus 3. Multiply 3 raised to power minus 1 by 3 as it is. This is 2 raised to power minus 1 and this is divided by, this 2 is cancelled by 2. This 2 is also cancelled. So this is now
2 raised to power minus 1 and 7 raised to power minus 1. Okay, you can see here that if there is a multiplication between all these factors, you can do the cancellation of the same factor is in the numerator, denominator. So this is cancelled. Now you can see here that all these factors has a power negative. Their power is negative. So the expression in the negative power is not the simplified one. We have to make that a positive power. So how can we make? By taking the reciprocal. How will take the reciprocal? We change the numerator as denominator and denominator as numerator. 7 raised to power minus 1, that is 7 raised to power plus 1. There is no need to write its power as plus 1. So this will be shifted down. Minus 3 power will be plus 3 and this minus 3 will be power as plus 3. This is 1 by 3. In the next step, 7 over. We'll take the cube of 3. It will be 27. We cannot simplify this further. So we will change this again in the radical form. And I have told you before how to change the exponential form into radical. हम exponential form को radical form में कैसे change करते हैं? आप पहले radicand लिखते हैं, that is 3. और denominator को आप क्या बना देते हैं? Index of radical. ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले इनके factors बनाए, उनको यहाँ पे हमने पुट किया. ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई माइनस 2, दैट इज माइनस 10 बाई 3. 5 इज कैंसिल बाय 5. ये हमारे पास क्या आ गया? 2 रेज टू पावर माइनस 1. और यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 एंड 1 बाय 2. अंदर वाले एक्सप्रेशन आप वैसे ही लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 बाय 2. यहाँ पर आप इसको ब्रेक करेंगे 10 बाय 3 को, इसको बनाएंगे 9 बाय 3 एंड 1 बाय 3. इसके साथ माइनस का साइन है तो आप दोनों के साथ माइनस लिखेंगे और बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है वो आप उसी तरह लिखेंगे. डिनोमिनेटर में आप माइनस 1 बाय 2 होल पावर है तो इसको अंदर वाली दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय 2. Here the 3 cancel by 9. Here 2 cancel by 2. 2 cancel by 2. So what is left over here? Here it is left 3 raised to power minus 3. और यहाँ हमारे पास क्या रह गया? 3 raised to power minus 1 over 3. और ये 2 raised to power minus 1 हमने ऐसे ही लिखा. डिनोमिनेटर में जब 2 2 से कैंसिल हो गया तो इसकी पावर क्या रह गई? माइनस 1. 2 की पावर क्या हो गई? माइनस 1. और यहाँ 7 की पावर क्या हो गई? माइनस 1. अब देखें 2 raised to power minus 1 in the denominator and numerator is same, they will be cancelled. So rest of the factors we will write over here, but these are the negative exponent. हम इनको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे, न्यूमिनेटर को आप ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को नीचे ले आए, दैट इज द डिनोमिनेटर. उनकी पावर्स पॉजिटिव होगी और यहाँ हमने 3 को सिंप्लीफाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 27 और इसको हमने दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिखा. दिस इज द रेडिकेंड एंड डिनोमिनेटर इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल ओवर हियर. ओके गाइस, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स पार्ट 2. Well students, here you can see it's part 2. That's also very simple. You can see here is no radical और हमारे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पर -8. Here we have the exponent of x is 5. Here that is -3 and y का exponent -4 है और वहाँ पर 2 है. हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि हम उसके फैक्टर्स बना के उसको सिंप्लीफाई करें. दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन. आप देख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है. इट मीन्स कि क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, बट किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द क्वेश्चन. अब 2 इज द कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट -8 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा -8 से. x वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x वाली के साथ और y वाली मल्टीप्लाई होगी y के साथ. अब 2 को मल्टीप्लाई करें -8 के साथ, सेम लाइक दिस. x raised to power 5 multiply x raised to power -3 and y raised to power -4, that is multiplied y raised to power 2 minus this one 2 8 times 16 x. यहाँ देखें हमारे पास बेस x है and there is multiplication and you have learned this in the laws of exponent कि when the bases are same and exponents are the different and there is multiplication between them, we can add the exponent by writing the base one time. So base is x, I have written x, I will add the exponent 5 plus
second exponent is -3. Then y is the base is same y, and there is multiplication, so it means we are going to add exponent -4 plus 2. Now we'll simplify this. -16 I will write as it is, x raised to power 5 plus minus -3, y raised to power minus plus minus करेंगे तो 2 आएगा, साइन इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू. Here it is -16, x raised to power 5 minus 3 is 2 and y raised to power -2. As I've told you, whenever the exponent of any base is negative like this, that is not the simplified form. अभी हमें उसको सिंपल करना है. जब हमारे पास ये पावर पॉजिटिव में आ जाएगी तो इट मीन्स उसकी सिंपली पॉजिटिव कैसे होगी, जब हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे. -16 हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही लिखेंगे, एंड ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी तो -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. नाउ दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. अब एक चीज अपने याद रखनी है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -16 को भी नीचे ले आते हैं, उसको प्लस से. -16 इज नॉट द एक्सपोनेंट. आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है अगर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है. -16 इज द कोएफिशिएंट दैट इज negative, it's okay, but if the exponent of any base is negative, then you will have to simplify that. Okay guys, after this we are going to solve its question number, it's part 3. Well guys, here part 3, again you can see we'll bring all the laws of exponent in your mind. Laws of exponent says that if there is division and the bases are same, then you will subtract exponent. मीन अगर आपके पास डिवीजन हो और बेसिस सेम हो तो आप एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये डिवीजन का साइन. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि बेस को एक दफा लिखकर एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, आपके पास बेस है x, y एंड z. देखिए हमारे पास सबसे पहले आप तो एक चीज यहाँ पर देखेंगे, z रेज़ टू पावर 0 है, एंड यू नो कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो दैट इज इक्वल्स टू 1. वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है. तो यहाँ पर z रेज़ टू पावर 0 मतलब अगर हम इसको रीजनिंग पे दें, x रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1. किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि हमें ये z रेज़ टू पावर 0 यहाँ पर नहीं चाहिए. x रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर -3, और इसकी जगह आप 1 लिखें ना लिखें उससे कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे कि here the bases are x, y and this z. So अगर बेस सेम है x और डिवीजन है तो आप एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट करेंगे. पहला एक्सपोनेंट -2 है, माइनस सबट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और फिर सेकंड एक्सपोनेंट लगाएंगे. देन y इज द बेस, फर्स्ट एक्सपोनेंट इज -1, सबट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे और सेकंड एक्सपोनेंट होगा -3. उसके बाद आपके पास बेस है z रेज़ टू पावर -4 और इसके नीचे कोई z नहीं है, सो दिस इज ओके. दिस इज इट्स होल पावर इज -3. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा माइनस का. y रेज़ टू पावर -1 एंड ये माइनस माइनस क्या होगा, +3. z रेज़ टू पावर -4 एंड इट्स होल एक्सपोनेंट इज -3. अभी हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये दोनों वैल्यूज तो हमारे पास ठीक हैं. -1 + 3 जब हम करेंगे, x रेज़ टू पावर -6, y रेज़ टू पावर माइनस प्लस माइनस 3 - 1 2, साइन इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू, प्लस z रेज़ टू पावर -4 एंड इट्स होल एक्सपोनेंट इज -3. अब हम क्या करेंगे कि यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही आपने पढ़ा कि जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, we multiply both the powers inside the bracket and outside the bracket. अब देखें ये x की पावर
पावर -6 है, y की पावर +2 है, z की -4 है। तो आप इस -3 को इन तीनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले x रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई -3, फिर आप लिखेंगे y, इसकी पावर है 2 एंड इट्स मल्टीप्लाई बाय -3। उसके बाद लिखेंगे हम z की पावर हमारे पास है -4 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 3 टाइम्स 18 y रेज टू पावर y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3 है, -2 3 टाइम्स 6 एंड z की पावर है -4 -3 माइनस प्लस 4 3 टाइम्स 12। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट x y एंड z, x एंड z की पावर हमारे पास पॉजिटिव है, दैट इज ओके, बट द पावर ऑफ y इज -6। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, हमें इसको +6 बनाना है। तो इस y को हम क्या ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। x रेज टू पावर 18 z रेज टू पावर 12 इट्स डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 8 y raised to power 6 -6 is converted into +6. So this is the simplified form. Okay guys, here the last part that we are going to do, fourth part. Okay guys, the last part we are going to do here, the part 4. Again you can see the exponential forms are given over here. 243 has no power over here. Yes. Okay, we will make the factors of 81, 243 and then 9, and in the working area we'll do 81, 3 2 times 6, 3 7 times 21, 3 9 times 27 and 3 3 times 9, 4 times 3 is here, then 243. In previous question we did this 3 8 times, 3 1 times, 3 27 times, 3 9 times, 3 3 times. Okay, 5 times 3 is here and 9 को जब हम करेंगे तो 3 is 2 times here. So we are going to put here in place of 81 we will put 3 raised to power 4. Outside power is n. Then dot mean multiplication, 3 raised to power 5. Then minus 3 raised to power, you can see this is 4n minus 1. It means 3 has the two powers. One is 4n and the other is minus 1. We can write this as 4n dot 3 raised to power minus 1. मतलब जब आप इसको split कर लेंगे तो you can write this in this way. आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 3 raised to power 4n dot mean multiplication 3 raised to power minus 1. आगे 243 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया, 3 रेज टू पावर 5. आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर में. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का. 3 को दो दफा मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है और एक पावर इसके साथ भी है 2n, हम उसको इसी तरह लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यू कैन सी इन द फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई n 4 मल्टीप्लाई बाय n बिकॉज इफ देयर आर द टू एक्सपोनेंट्स यू विल मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाय 2n. सो 3 रेज टू पावर 4n, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n, 3 रेज टू पावर minus 1 and 3 रेज टू पावर 5. Here 3 raised to power 2 times 4n dot 3 raised to power 3. Okay guys, here you can see that in the numerator there is minus. On left side of the minus there is one term and one term is here. Two terms are here. ठीक है, एक टर्म हमारे पास ये है, एक ये है. आप देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है. द कॉमन इज 3 raised to power 4n, इधर भी है और इधर भी है. 3 रेज टू पावर 5 इधर भी है और उधर भी है. तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू इसमें से क्या आ जाएंगी, कॉमन. 3 रेज टू पावर 4n एंड 3 रेज टू पावर 5 इज कॉमन. जब ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा इसको हम
हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रेज टू पावर 4n एंड 3 रेज टू पावर 5 हमने कॉमन ले लिया। ये पूरे एक्सप्रेशन कॉमन में चला गया तो हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस, और यहां से भी ये भी कॉमन चला गया, हमारे पास क्या रह गया, 3 रेज टू पावर -1 like this, and this is divided by 3 raised to power 4n and 3 raised to power 3. You can see here कि अब हमारे पास कॉमन जो एक्सप्रेशन हमें 3 raised to power 4n और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। जब तक आप कॉमन नहीं लेंगे आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रह गया, 3 raised to power 5, और डिनोमिनेटर में देखिए दिस इज 3 रेज टू पावर 3। इन दोनों की बेस सेम है 3 और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनके एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है 3, एक्सपोनेंट 5 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और इसकी एक्सपोनेंट 3 है। अब इनसाइड हमारे पास क्या है, 1 माइनस, देखिए 3 की पावर -1 है, -1 नहीं हो सकती, इट शुड बी +1, तो 3 को हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा, तो न्यूमिनेटर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। अब इसकी 3 की पावर पॉजिटिव 1 होगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया। इन द नेक्स्ट स्टेप 5 - 3 = 2। अब इसको आप सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो दैट इज 1। जब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो दैट इज 3। 3 divided by the denominator 1 3 times and that 3 multiplied by 1, that is 3 minus, then this 3 divided by 3, that is 1 multiplied by 1 is 1. It will give us square of 3 times 9, and this 3 minus 1 is 2 by 3. You can see from here कि इन दोनों में से 3 डिनोमिनेटर है, 9 न्यूमिनेटर है, and they can be cancelled, 3 1 times and 3 3 times। तो ये हमारे पास 3 into 2 रह गया, 3 into 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 times 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 6। So this was question number 1 in which we use the laws of exponent to simplify these exponential expression. Thank you.